श्रेष्ठ गीत सॉन्ग ऑफ सोलोमन 6 चैप्टर 7 चैप्टर 8 चैप्टर पढ़ेंगे। किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। सॉन्ग ऑफ सोलोमन किंग्स जेम्स वर्जन में से चैप्टर 6 7 8 फर्स्ट वर्ड से पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। Isaiah's The church professes her faith in Christ. Chapter 6 Song of Solomon's Song. Chapter 6 King James Version में से हम पढ़ रहे हैं। The church professes her faith in Christ. He shews her graces and his love toward her. पिता, हम आपसे विनती करते हैं इन वचनों को हम भले तरह से समझें और हमारी आत्मिक दुविधा में पिता किस प्रकार से ये हमको बताता है कैसे हम मिलन में रहते हैं पवित्र आत्मा के संगति में। खुदा, बहुत प्यारा अनुभव परमेश्वर पवित्र आत्मा के संगति का। इसके लिए हमको पिता परमेश्वर दुनिया की कोई बात लुभाती नहीं है खुदा, और ना ही कोई इंसान हमारे मन को जीत पाता है, क्योंकि इतना तृप्त हुए हुए लोग हैं हम पवित्र आत्मा के संगति में रहते हुए। इसके लिए हम सब कुछ छोड़ देने में भी आज़ाद रह जाते हैं, क्योंकि खुदा परमेश्वर हम पवित्र आत्मा के संगति का मिठास चख चुके हुए लोग हैं। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, जिनको अभी तक ये रहस्य नहीं मालूम था, अब ये रहस्य उनके जहन में, उनके सोचों में, समझ में भले तरह से देने के लिए हम तुझसे विनती करते हैं, ताकि उनकी सारी दुनियादारी की जो भी पिता उनके अंदर का तमन्नाएं हैं, जो दुनिया के अंदर चकाचौंध के अंदर वो अपने जगह को ढूंढ रहे हैं, जो इंटीमेट एरिया ऑफ लाइफ है उनका, वो तड़पता रहता है, और उसके ही कारण खुदा वो अलग अलग प्रकार के रास्तों से उछल पड़ते हैं, निकल जाते हैं और गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर हौसला खो देते हैं, फिर मन टूट जाता है, और फिर ऐसे ही गिरते उठते उनके जीवन बर्बाद हो जाते हैं। खुदा, वो एक एरिया ऑफ लाइफ है जिसको अगर वो समझ जाए कि वो एरिया ऑफ लाइफ ये सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन बता रहा है, इंटीमेट रिलेशनशिप विद द होली स्पिरिट। खुदा, जो गहराई का संबंध जीवन जो है, जो पवित्र आत्मा के साथ हमारे आत्मा का मिलन का समय, खुदा परमेश्वर वही एकमात्र वो एरिया ऑफ लाइफ को शांत कर सकता है और तृप्त में रख सकता है। पिता परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं, ऐसा जो भी आज बाइबल रीडिंग में हमारे संगति में है, इस अभिषेक को वो खोए नहीं, और वो संगति का आनंद खुदा समझने लगे, और उसमें तेरा लालच बढ़ता जाए, और तुझसे वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलन में मौजूद रहे। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। The church professes her faith in Christ. He shews her graces and his love toward her. First verse say, Whither is thy beloved gone, O thou fairest among women? Whither is thy beloved turned aside, that we may seek him with thee? My beloved is gone down into his garden, to the beds of spices, to feed in the gardens and to gather lilies. I am my beloved's, and my beloved is mine. He feedeth among the lilies. Thou art beautiful, O my love, as Tyre, comely as Jerusalem, terrible as an army with banners. Turn away thine eyes from me, for they have overcome me. Thy hair is as a flock of goats that appear from Gilead. Thy teeth are as a flock of sheep which go up from the washing. Whereof every one beareth twins, and there is not one barren among them. As a piece of a pomegranate are thy temples within thy locks. There are 80 queens and 80 concubines and virgins without number. My dove, my undefiled, is but one,
She is the only one of her mother. She is the choice one of her that bare her. The daughters saw her and blessed her, yea, the queens and the concubines, and they praised her. Who is she that looketh forth as the morning, fair as the moon, clear as the sun, and terrible as an army with banners? I went down into the garden of nuts to see the fruits of the valley, and to see whether the vine flourished. 11th verse से आगे पढ़ेंगे. I went down into the garden of nuts to see the fruits of the valley, and to see whether the vine flourished and the pomegranates budded. 12 verse से आगे. Or ever I was aware, my soul made me like the chariots of Aminadab. 13 verse. Return, return, O Shulamite, return, return, that we may look upon thee. What will ye see in the Shulamite? Is it where the company of two armies? Chapter 7. Introduction. A further description of the graces of the church. She professes her faith and assurance of Christ's love. First verse से पढ़ेंगे. How beautiful are thy feet with shoes, O princess daughter! The joints of thy thighs are like jewels, the work of the hands of a cunning workman. Thy navel is like a round goblet, which wanteth not liquor. Thy belly is like an heap of wheat set about with lilies. Thy two breasts are like two young roes that are twins. Thy neck is as a tower of ivory, thine eyes like the fish pools in Heshbon. By the gate of Beth-rabbim, thy nose is as the tower of Lebanon, which looketh toward Damascus. Thine head upon thee is like Carmel, and the hair of thine head like purple. The king is held in the galleries. How fair and how pleasant art thou, O love for delights! This thy stature is like to a palm tree, and thy breasts to clusters of grapes. I said, I will go up to the palm tree, I will take hold of the boughs thereof. Now also thy breasts shall be as clusters of the vine, and the smell of thy nose like apples, and the roof of thy mouth like the best wine for my beloved, that goeth down sweetly, causing the lips of those that are asleep to speak. I am my beloved's, and his desire is toward me. Hallelujah. Come, my beloved, let us go forth into the field, let us lodge in the villages, let us get up early to the vineyards, let us see if the vine flourish, whether the tender grape appear and the pomegranates bud forth. There will I give thee my loves. The mandrakes give a smell, and at our gates are all manner of pleasant fruits, new and old, which I have laid up for thee, O my beloved. Chapter 8. Love of the Church to Christ. Vehemence of love, calling of the Gentiles, Christ's coming prayed for. First verse say, O that thou went as my brother that sucked the breasts of my mother. When I should find thee without, I would kiss thee. Yea, I should not be despised. I would lead thee and bring thee into my mother's house.
who would instruct me? I would cause thee to drink of spiced wine of the juice of my pomegranate. His left hand should be under my head, and his right hand should embrace me. I charge you, O daughters of Jerusalem, that ye stir not up nor awake my love until he please. Who is this that cometh up from the wilderness, leaning upon her beloved? I raised thee up under the apple tree. There thy mother brought thee forth, there she brought thee forth that bare thee. Set me as a seal upon thine heart, as a seal upon thine arm. For love is strong as death, jealousy is cruel as the grave. The coals thereof are coals of fire, which hath a most vehement flame. Many waters cannot quench love, neither can the floods drown it. If a man would give all the substance of his house for love, it would utterly be contemned. We have a little sister, and she hath no breasts. What shall we do for our sister in the day when she shall be spoken for? If she be a wall, we will build upon her a palace of silver, and if she be a door, we will enclose her with boards of cedar. I am a wall, and my breasts like towers. Then was I in his eyes as one that found favor. Solomon had a vineyard at Balhamon. He let out the vineyard unto keepers. Every one for the fruit thereof was to bring 1,000 pieces of silver. My vineyard, which is mine, is before me. Thou, O Solomon, must have 1,000, and those that keep the fruit thereof 200. Thou that dwellest in the gardens, the companions hearken to thy voice. Cause me to hear it. Make haste, my beloved, and be thou like to a roe or to a young hart upon the mountains of spices. श्रेष्ठ गीत 6 अध्याय 7 अध्याय 8 अध्याय हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। सहेलियाँ, हे स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी कहाँ गया? तेरा प्रेमी कहाँ चला गया कि हम तेरे संग उसको ढूंढने निकले? वधू, मेरा प्रेमी अपनी बारी में अर्थात बलसान की क्यारियों की ओर गया है कि बारी में अपनी भेड़ बकरियां चराए और सोसन फूल बटोरे। मैं अपने प्रेमी की हूँ और मेरा प्रेमी मेरा है। वह अपनी भेड़ बकरियां सोसन फूलों के बीच चराता है। 5वां गीत वर। हे मेरी प्रिय, तू तिरसा के समान सुंदरी है, तू यरूशलेम के समान रूपवान है और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर है। अपनी आंखें मेरी ओर से फेर ले, क्योंकि मैं उनसे घबराता हूँ। तेरे बाल ऐसी बकरियों के झुंड के समान है जो गिलाद की ढलान पर लेटी हुई देख पड़ती हो। तेरे दांत ऐसी भेड़ों के झुंड के समान है जिन्हें स्नान कराया गया हो। उनमें से प्रत्येक जुड़वा बच्चे देती है, जिनमें से किसी का साथी नहीं मरा। तेरे कपोल तेरी लटों के नीचे अनार की फांक से देख पड़ते हैं। वहाँ 60 रानियां और 80 रखेलियां और असंख्य कुमारियां भी है, परंतु मेरी कबूतरी मेरे निर्मल अद्वितीय है, अपनी माता की इकलौती, अपनी जननी की दुलारी है। पुत्रियों ने उसे देखा और धन्य कहा। रानियों और रखेलियों ने देखकर उसकी प्रशंसा की। यह कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई पड़ती है। मैं अखरोट की बारी में उतर गई कि तराई के फूल देखूं और देखूं कि दाखलता में कलियां लगी
और अनारों के फूल खिले कि नहीं। मुझे पता भी न था कि मेरी कल्पना ने मुझे अपने राजकुमार के रथ पर चढ़ा दिया। सहेलिया 13 वचन से आगे, लौट आ हे शुलेमिन, लौट आ कि हम तुझ पर दृष्टि करें। वधु, क्या तुम शुलेमिन को इस प्रकार देखोगे जैसा महनैम के नृत्य को देखते हैं? वर 7 अध्याय पहले वचन से, हे कुलीन की पुत्री, तेरे पाँव जूतियों में क्या ही सुंदर है। तेरी जांघों की गोलाई ऐसे गहनों के समान है जिसको किसी निपुण कारीगर ने रचा हो। तेरी नभी गोल कटोरा है जो मसाला मिले हुए दाख मधु से पूर्ण हो। तेरा पेट गेहूं के ढेर के समान है जिसके चारों ओर सोसन फूल हो। तेरी दोनों छातियाँ मृगनी के 2 जुड़वे बच्चों के समान है। तेरा गला हाथी दांत की मीनार है। तेरी आंखें हेशबोन के उन कोंडों के समान है जो बतरब्बीम में के फाटक के पास है। तेरी नाक लबानोन की मीनार के तुल्य है जिसका मुख दमिश्क की ओर है। तेरा सिर तुझ पर करमेल के समान शोभायमान है और तेरे सर की लटें बैंजनी रंग के वस्त्र के तुल्य है। राजा उन लटाओं में बंधुआ हो गया है। हे प्रिय और मनभावनी कुमारी, तू कैसी सुंदरी और कैसी मनोहर है। तेरा डील डॉल खजूर के समान शानदार है और तेरी छातियाँ अंगूर के गुच्छों के समान है। मैंने कहा, मैं इस खजूर पर चढ़कर उसकी डालियों को पकड़ूंगा। तेरी छातियाँ अंगूर के गुच्छे हो और तेरे श्वास का सुगंध सेबों के समान हो और तेरे चुंबन उत्तम दाख मधु के समान है। वधु, यह सरलता से ओठों पर से धीरे धीरे बह जाती है। मैं अपने प्रेमी की हूँ और उसकी लालसा मेरी ओर नित बनी रहती है। हे मेरे प्रेमी, आ हम खेतों में निकल जाए और गांवों में रहे। फिर सवेरे उठकर दाख की बारियों में चले और देखे कि दाख लता में कलियां लगी है कि नहीं, कि दाख के फूल खिले हैं या नहीं और अनार फूले हैं या नहीं। वहाँ मैं तुझको अपना प्रेम दिखाऊंगी। दोदाफली से सुगंध आ रही है और हमारे द्वारों पर सब भांति के उत्तम फल है, नए और पुराने भी, जो हे मेरे प्रेमी मैंने तेरे लिए इकट्ठे कर रखे हैं। 8 अध्याय पहले वचन से, भला होता कि तू मेरे भाई के समान होता जिसने मेरी माता की छातियों से दूध पिया। तब मैं तुझे बाहर पाकर तेरा चुंबन लेती और कोई मेरी निंदा न करता। मैं तुझको अपनी माता के घर ले चलती और वह मुझको सिखाती और मैं तुझे मसाला मिला हुआ दाख मधु और अपने अनारों का रस पिलाती। वचन से आगे, काश उसका बायां हाथ मेरे सिर के नीचे होता और अपने दाहिने हाथ से वह मेरा आलिंगन करता। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमको शपथ धराती हूँ कि तुम मेरे प्रेमी को न जगाना जब तक वह स्वयं न उठना चाहे। छठा गीत, सहेलिया 5 वचन से आगे, यह कौन है जो अपने प्रेमी पर टेक लगाए हुए जंगल से चली आती है। वधु, सेब के पेड़ के नीचे मैंने तुझे जगाया, वहाँ तेरी माता ने तुझे जन्म दिया। वहाँ तेरी माता को पीड़ाएं उठी। मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा रख और ताबीज के समान अपनी चाह पर रख, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है, वरन परमेश्वर ही की ज्वाला है। हालेलुया। पानी की बाढ़ से भी प्रेमी
प्रेम नहीं बुझ सकता, हालेलुया, और न महानदों से डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी, हालेलुया। देखो, आप जब ठंडे पड़ जाते हैं, पवित्र आत्मा के मिलन में आप ठंडे पड़ जाते हैं, आप प्रभु से दूर होने लगते हैं, ये 7 वचन आपके ऊपर चढ़ा होता है। 7वां वचन, ओके, आपके ऊपर पानी को गिराया होता है, आपकी आग को, प्रेम को बुझाने के लिए, ठीक है, और आपको डुबा दिया होता है जो महानद होते हैं उनमें, ठीक है। तो आपने प्रार्थना करते समय ये बोलना है, जो दुष्ट का पानी है, जो बाढ़ समान मुझ पर डाला गया है, नासरी यीशु मसीह के नाम से मैं डिस्ट्रॉय करती हूँ। जो महानद में मुझे डुबाया गया है, नासरी यीशु मसीह के नाम में मैं डिस्ट्रॉय कर देती हूँ। और फिर अपने अंदर परमेश्वर का प्रेम जल उठने की प्रार्थना करना है कि परमेश्वर तो ज्वाला है, तेरी अग्नि मेरे अंदर ज्वाला दमक कर पूर्ण रूप से बढ़ने लगे। फिर आप पवित्र आत्मा के मिलन में दोबारा संजीवित हो जाते हैं, रिवाइव हो जाते हैं, ओके। यहाँ लिखा है और आगे कि कोई आपको लालच देता है तो भी आप उसको लेंगे नहीं, उसे तुच्छ जानेंगे, हालेलुया। तो ये 7 वचन का ये कारण है जिसमें आत्मिक ठंडापन आने का रास्ता है। एक तो आप किसी का दिया हुआ चीज़ लिया रहेगा, लालच में दिया हुआ चीज़, उसके कारण भी आपका प्रेम परमेश्वर में घट जाता है। और कुछ ऐसा भी है जो पानी गिराया जाता है, कुछ ऐसा है जो महानद का पानी लाके उसमें आपका कुछ भी डुबा दिया जाता है। ये सारा इविल वर्क्स है, ओके। वधू का भाई 8 वचन से आगे, हमारी एक छोटी बहन है जिसकी छातियाँ अभी नहीं उभरी। जिस दिन हमारी बहन के ब्याह की बात लगे उस दिन हम उसके लिए क्या करें? यदि वह शहरपनाह होती तो हम उस पर चांदी का कंगूरा बनाते, और यदि वह फाटक होती तो हम उस पर देवदारू की लकड़ी के पटरे लगाते। वधू 10 वचन से, मैं शहरपनाह थी और मेरी छातियाँ उसके गुम्मट, तब मैं अपने प्रेमी की दृष्टि में शांति लाने वाले के समान थी, हालेलुया। वर 11 वचन से आगे, बालहामोन में सुलेमान की एक दाख की बारी थी, उसने वह दाख की बारी रखवालों को सौंप दी। हर एक रखवाले को उसके फलों के लिए चांदी के 1000 टुकड़े देने थे। मेरी निज दाख की बारी मेरे ही लिए है, हे सुलेमान, 1000 तुझी को और फल के रखवालों को 200 मिले। तेरह वचन से आगे पढ़ेंगे। तू जो बारियों में रहती है, मेरे मित्र तेरा बोल सुनना चाहते हैं, उसे मुझे भी सुनने दे। वधू 14 वचन से आगे, हे मेरे प्रेमी, शीघ्रता कर और सुगंध द्रव्यों के पहाड़ों पर चिकारे या जवान हरिन के समान बन जा, हालेलुया। रिबांता शखा बरखा सियांतु खंबर खोस्ता तहब होशकर बकिंदर हल्लर बहा अखासे हिकतकिन ब्रोसा। हम पढ़ेंगे 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, 2 years बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूक 23 chapter 26 वर्स से 33 वर्स तक, 2 Samuel 9 chapter 10 chapter। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान में जो है, लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 26 से 33 वचन तक, और दूसरा शमूएल की पुस्तक लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 26 से 33 वचन, दूसरा शमूएल की पुस्तक 9 अध्याय 10 अध्याय। हम 2 years बाइबल रीडिंग जो पढ़ने जा रहे हैं, नासरी यीशु मसीह के नाम में हम सच में पवित्र आत्मा का अभिषेक लिए हुए पढ़ना है, और हमारे अंदर परमेश्वर का वचन जीवित हो उठना है। उसके भेद, उसके रहस्य नर्क के द्वार के सामने टिकते नहीं हैं, नर्क के फाटक उसके सामने टिकते नहीं हैं।
तो हम अंधकार में से बाहर निकाले जाना और निकाल कर लाना दोनों भी प्रकाशनों के द्वारा होता है। इसके लिए पतरस को यही बोला था कि प्रकाशन मिला था पतरस को कि यीशु मसीह कौन है, वो पिता से प्रकाशन मिला था। और इसके लिए यीशु मसीह ने कहा था ऐसा जो प्रकाशन प्राप्त करेगा वो मेरी कलीसिया का नींव उसके ऊपर बनेगा। ओके, तो प्रकाशन ही वो बात थी जो पतरस कहा गया है, जिसे चट्टान कहा जाता है, जिसे कोने का पत्थर हम बोलते हैं। तो यीशु मसीह है वो। तो वो प्रकाशन आपको और कोई नहीं, वो यीशु मसीह है। इसके लिए आपको वो मुलाकात होना बेहद ज़रूरी है, तभी आप पावरफुल बनते हैं, तभी आप रास्ता पार कर निकल जाते हैं और आप शत्रुओं से जीत जाते हैं। तो इसके लिए प्रकाशन के लिए आपको अकेले में बैठना है, अकेले में बैठकर पर्सनल टाइम में व्यक्तिगत समय में अपने इस 2 साल के बाइबल रीडिंग को करना है, 2 इयर्स बाइबल रीडिंग को करना है। और परमेश्वर जिस जगह पर हमें पहुंचाना चाहता है उस मंजिल के विषय में परमेश्वर आपको सुधार लाएगा, फिट एंड फिक्स करेगा, व्यवस्थित रूप में आपको तैयार करेगा। और ऐसा होने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है और हमने निश्चित 2 साल के अंत में आप देखेंगे आप ऐसे अनुग्रह से ढल चुके हुए इंसान होकर आएंगे। परमेश्वर आपका बड़े पैमाने में इस्तेमाल करने के लिए उठा लेगा आपको। ठीक है, तो आपने इस मौके को नहीं छोड़ना है, निश्चित परमेश्वर के अनुग्रह का लाभ आपने उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन। धन्यवाद करते हैं, बहुत प्यारा है तू परमेश्वर। तुझे छोड़कर पिता कहीं पर कुछ नहीं है खुदा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ना सताव में कुछ है, ना आनंद में कुछ है, ना तसल्ली में कुछ है, कहीं पर भी कुछ नहीं है तुझे छोड़कर खुदा। हम कहीं पर भी समय दे या हम कहीं पर भी अपने आप को रखें व्यर्थ जाता है। तू जहाँ पर है वहाँ सब कुछ सुंदर हो जाता है खुदा। हम तुझे छोड़कर और कहीं नहीं जाएंगे खुदा, हम कभी नहीं भटकेंगे तुझे छोड़कर, हम कभी रास्ता छोड़कर नहीं जाएंगे खुदा, कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि तू वो बहुमूल्य परमेश्वर है जिसके अंदर से वो स्रोत है जिसके लिए हम तड़पते हैं खुदा, जिसके कारण हम बर्बाद हो जाते हैं, जो ना मिलने पर हम परमेश्वर व्यर्थ निकल जाते हैं। मेरे खुदा परमेश्वर, हम उस जगह में जो प्राप्त किए हैं वो तू है प्रभु यीशु, और तुझे छोड़कर हम और कहाँ जाए। हमारा प्यार तुझसे लगा हुआ है खुदा। पिता पवित्र आत्मा, हमें फिट एंड फिक्स कर कि हम इस प्रेम में सिद्ध बनते जाएं और हम निडर बनते जाएं। नासरी यीशु मसीह के नाम में उस ऑर्डरलीनेस में हमें व्यवस्थितपन में लेकर आ जिसमें प्रभु यीशु मसीह हमको लेकर जाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू फादर, thank you Jesus, thank you Holy Spirit, and I love you Holy Spirit, I love you and I love you Holy Spirit। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हम सब की तू सहायता कर रहा है, हम सब आपसे प्रेम करते हैं और हमारी सहभागिता संगति में तू आया हुआ है, इसके लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। आगे का समय और ज़्यादा हमें तुझ में बढ़ा। नासरी यीशु मसीह के नाम में हमारा धन्यवाद, बलिदान और प्रार्थना विनती को तेरे सामने लाते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।